پاکستانی آرٹسٹ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سویڈن کے سماجی ادارے پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے تعاون سے اپنی پینٹنگز نیلامی کے لیے پیش کر دی ہیں۔ نیلامی کی تقریب رواں ماہ کراچی میں منعقد ہوگی۔ بیورو چیف کے غلام حسین اوانی سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستانی آرٹسٹ محمد حسین نے اپنی کئی سال کی آمدن کو سیلاب زدگان کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کیا۔ محمد حسین کا کہنا ہے کہ سویڈن کے سماجی ادارے پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے تعاون سے ہم پینٹنگز اسکیچ کی نیلامی منعقد کر رہے ہیں، جو کہ رواں ماہ مالمو انٹرنیشنل اسکول میں منعقد کی جائے گی۔ محمد حسین نے یورپ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیں تاکہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم مل کر پاکستانیت کا ثبوت دیں۔ پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے سربراہ زبین حسین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ نہ صرف یورپ بلکہ پاکستان میں موجود مخیر حضرات کو بھی اس نیلامی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ انشاءاللہ سرکاری اداروں کو اعتماد میں لے کر شفاف حکمت عملی سے رقوم اور امدادی سامان سیلاب زدگان تک پہنچائی جائیں گی۔ پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے اپنے کچھ آرٹ اسکیچ سے بطور نیلامی کے لیے پیش کر کے سیلاب زدگان کے لیے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان بالخصوص یورپ کے مقیم پاکستانی کمیونٹی سے میری درخواست ہے کہ ہم سب مل کر ہم اپنے وطنوں کی مدد کریں اور آپ آئیں اس نیلامی میں آگے بڑھیں اور اس اسکیچ آرٹ کی نیلامی کراچی پاکستان پروموشن نیٹ ورک یورپ کے تعلیمی ادارے ستمبر کے آخری ہفتے میں منعقد کی جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ محمد حسین نے پاکستانی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے فن کا استعمال کر کے قابل تقلید مثال قائم کی ہے، جسے دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ کالڈر ڈیل ایڈلٹ ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر سروس کے استعمال کرنے والے افراد کے تجربات اور تحفظات پر مبنی رپورٹ کا اجرا نور سبیل ٹیم کے اشتراک سے ہالی فیکس میں کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں۔ ایکول کیئر کی رپورٹ مرتب کرنے والی ایما بیک نے کہا ہے کہ اس رپورٹ میں مذہبی، ثقافتی اور شخصی پہلوؤں کے علاوہ سوشل کیئر کے حوالے سے ان تجربات، تحفظات اور خدشات کو سامنے لایا گیا ہے جن کا اظہار سروس استعمال کرنے والے افراد نے کیا۔ This report came out of a body of work that we did that's funded by the Health Foundation, looking at the barriers that people face in social care and the way in which it's currently funded and the way that the decisions that get made about that funding, about who gets the care, about where people live, whether it's at home or elsewhere, and all of the problems that people face in that. And what we found was that there was evidence of severe disparity in our local Muslim community. سوشل کیئر سروس استعمال کرنے والے افراد نے نامناسب رویہ، یک طرفہ کارروائی، رابطے کی کمی، مترجم کی عدم موجودگی، مذہبی و ثقافتی ضروریات سے لا علمی اور معلومات کی عدم فراہمی جیسے تجربات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ Through this group I've got encouragement to speak. Otherwise whatever we're saying is just getting put under the carpet. So I just want justice and the foods to be served halal for our loved ones, the ones that are in the care home. 4-5 سال ہو گئے ہیں تو بچہ لے کے گئے ہیں، اسکول گیا پھر واپس نہیں آیا، تو ہم نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھیج دیں گے، وہ نہیں بھیج رہے، ہمیں ملنے بھی نہیں دے رہے۔ سوشل کیئر سروس کا لیڈر ڈیل کونسل کی انٹرم ڈائریکٹر آن فلی نیگن نے کہا کہ ہم رپورٹ کا بغور جائزہ لیں گے اور تحفظات و خدشات کو دور کریں گے۔ I've been in the post just for a short period, so I've just seen the report in the last couple of days. I'm really delighted to be here, to have been invited to join you to hear more about people's experience, the things that people would like to see happen differently. So I'm really here to listen and then to think through with everybody here how we move forward, what could improve things, how we can work together really on making any changes that are needed to make. So mainly here to listen today, and I'm really delighted to have been invited. کارڈرڈیل کونسل برائے مساجد کے چیئرمین ندیم میر، کونسلر جیمز بیکر، کونسلر فضل شوکت اور دیگر شرکا نے پیش کیے گئے تجربات و تحفظات کو تشویش قرار دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹ سوشل کیئر سروس کے طریقہ کار کو بہتر اور لوگوں کے خدشات دور کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ I'm Councillor Faisal Shoka. I'm here to support the work of this group, Noor Sabil. I think some of the things that have come out in the report are a point of reflection. We do really need to think about how our services are geared towards members of the BAME segment and carers from that sector. We will kind of help be an effective opposition, and we'll try and raise some of the concerns
that are in the report on the council and see if we can make progress on some of the issues that have been discussed today for the betterment of all the people here in Calderdale who are affected by social care. A very, very important report that's been published today, really looking at the inequalities in relation to the service provision provided to the community. We need to ensure that the service is fit for purpose, that it actually meets the needs of the community. आज की जो रिपोर्ट है ना, इतना अहम रिपोर्ट है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए जो सर्विस काउंसिल प्रोवाइड करती है, हमें ये देखना चाहिए कि ये जो सर्विस है ये हमारी कम्युनिटी के लिए सही है या नहीं सही. अगर सही नहीं है तो काउंसिल को देखना पड़ेगा कि वो सर्विस को कैसे सही करेंगे. जीनत हुसैन, यास्मीन हमीद और नूर सबील की दीगर रज़ाकारान ने कहा कि इस रिपोर्ट की मदद से हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों के रज़ाकाराना तौर पर मसाइल हल करेंगे, कानूनी पहलुओं को समझने और मसावी हकूक़ के हुसूल में मदद फराहम करेंगे. आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस रिपोर्ट के बारे में, जो हेल्थ एंड सोशल केयर जो नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के जो हमारे बच्चे केयर में जाते हैं या बड़े केयर में जाते हैं, उनके बारे में आज ये रिपोर्ट लॉन्च हो रही है. और हमारे पास यहाँ सब इकट्ठे कम्युनिटी से भी और लोकल अथॉरिटी से भी आए हैं ताकि हम उनको बता सकें कि ये हम कैसे इसको कैसे बेहतर करें. ये है हमारा मकसद आज. मुकर्ररीन ने कहा कि रिपोर्ट के बाद सोशल सर्विस के अमले को मजहबी और सकाफती ज़रूरियात से आगाह और तरीके कार में बेहतरी लाते हुए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे. वक़ार बाबर मुग़ल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड. पाकिस्तान के सफ़ीर बराए अमरीका मसूद खान ने कहा है कि बरवक्त व फराख दिलाना अमरीकी इमदाद पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात की गहराई की अक्कास है. सफ़ीर पाकिस्तान ने हालिया सलाह के दौरान बरवक्त रद्द-ए-अमल पर अमरीकी हुकूमत, कांग्रेस, कॉर्पोरेट सेक्टर, इंसान दोस्त और मुखय्यर तंजीमों का शुक्रिया अदा किया. आपको बताएं कि दोस्त ममालिक और बैनुल-अक़वामी बरादरी से बहाली और तामीर नौ के अमल के दौरान मुसलसल ताउन जारी रखने की भी अपील का अदा किया गया है. अमरीकी महकमा ख़ारजा, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आला सतही वफ़द से मुलाकात में सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब इंतहाई बड़े पैमाने का है. हम इंसानी जानें बचाने के साथ साथ लाखों लोगों की मुश्किलात में कमी लाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो माहौलियाती तबाहकारी के नतीजे में शदीद अज़ियत का सामना कर रहे हैं. सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाए हैं, लेकिन आफत का पैमाना इस कदर वसी है कि कोई भी हुकूमत इससे तनहा नहीं निपट सकती है. दुनिया भर के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ साथ रूस में बसने वाले पाकिस्तानी भी सैलाब से मुतासरा अपने हमवतनों की मदद में पेश हैं. मॉस्को में पाकिस्तानी कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज ने सफारत खाना पाकिस्तान में जाकर सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स जमा कराए हैं. पाकिस्तान में मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सामान से भरा ट्रक मुतासरा इलाकों तक भिजवाया गया. उन्होंने रूस में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बढ़ चढ़ कर एहतियात देने की अपील की है. शाहिद घुमन की रिपोर्ट. रूस में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए मुतहरक. पाकिस्तान कम्युनिटी रूस की जानब से न सिर्फ फंड रेजिंग की गई बल्कि पाकिस्तान में मुतासरा इलाकों तक इमदाद भी पहुँचाई गई. इस हवाले से पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर मलिक शहबाज ने भरपूर किरदार अदा किया. उन्होंने सफारत खाना पाकिस्तान मास्को में सफीर पाकिस्तान शफकत अली खान को सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी रकम भी जमा कराई. इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में इमदादी सामान से भरा एक ट्रक भी अपने अजीज़ो कारब की ज़ेर निगरानी मुतासरीन के इलाकों में भेजा है, जिसमें खैमे, मच्छरदानियां, पानी की बोतलें, खाने पीने के अशिया और अद्वियात शामिल हैं. 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मलिक शहबाज का कहना था कि वो मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं. उनसे जिस कदर भी हो सकेगा वो अपने पाकिस्तानी हमवतनों की भरपूर मदद करेंगे. पूरी दुनिया में तमाम पाकिस्तान ओवरसीज़ जो हैं वो जो इस वक्त हमारे मुल्क में जो कुदरती आफत है सैलाब की जो जिससे बुरी तरह से मुतासर है हमारा मुल्क, तो उसमें भरपूर वो जो है अपनी काविशों से भरपूर वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं. इधर रशिया में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एम्बेसी में लोगों ने फंड्स इकट्ठे करवाए, हमने उसमें भी पार्टिसिपेट किया. उसके अलावा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा जो ट्रक है वो हमने उधर उसको तैयार करवाया ऑर्डर पे. उसमें 50 खैमे हैं, 200 मच्छरदानी हैं, 500 क्रेट पानी के हैं, 200 क्रेट दूध के हैं, 200 क्रेट बाकरखानी है, केक रस हैं और उसके अलावा मेडिसिन हैं वो हमने भिजवाई हैं, जो कि कल रात इंशाल्लाह निकला ट्रक. जो हकदार हैं जो इस वक्त परेशान हैं इस
जो सिचुएशन चल रही है, तो हमारी कोशिश है कि अल्लाह पाक उनके ऊपर रहमत करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। इस मौके पर उन्होंने रूस में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों से हम वतनों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की भी अपील की। मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए दुनिया भर के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर एहतियात दिए हैं और मुतासरा इलाकों में कई ओवरसीज पाकिस्तानी फलाही तंजीमें भी खिदमत खलक में मसरूफ हैं। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस। ऑस्ट्रिया के दारकूमत वियना में पाकिस्तान और तुर्की के सफारत खानों ने मुश्तरका तौर पर तकरीब का अहतमाम किया, जिसका मकसद मकामी अफराद, ओवरसीज़ कम्युनिटी और मुखय्यर हज़रात को पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल से आगाह करना था। इस मौका पर शुरा से मुतासरीन सैलाब की भरपूर मदद करने की भी अपील की गई। तफसीलात के लिए देखते हैं वियना से अकरम बाजवा की रिपोर्ट। वियना में पाकिस्तान और तुर्किया सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक हो गए। दोनों ममालिक के सफारत खानों की सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाही तकरीब। मुश्तरका तकरीब में पाकिस्तान के सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोखर और तुर्की के सफ़ीर मिस्टर ओजान सेहवन ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा तकरीब में तुर्क NGOs और मुखय्यर तंजीमों के सरबराहान और ऑस्ट्रिया में तुर्क और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ हेड ऑफ फैशन अदील खान अफरीदी ने अदा करते हुए तुर्की और ऑस्ट्रेलियन कम्यूनिटी और रफाही तंजीमों के सरबराहान की तकरीब में शिरकत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोखर ने अपनी प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान में सैलाब के ज़मीनी सूरत हाल और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली इमदादी और बचाव की कोशिशों का तफसील से ब्रीफिंग दी और उन्होंने आलमी बरादरी की मुसलसल हिमायत की अहमियत पर जोर दिया, क्योंकि पाकिस्तान रेस्क्यू और रिलीफ से तामीर नौ और बहाली के अगले मरहले की तरफ बढ़ रहा है। सफ़ीर पाकिस्तान ने तुर्क सफ़ीर और तुर्क कम्यूनिटी का अपने पाकिस्तानी भाइयों के शाना बशाने खड़े होने पर शुक्रिया अदा किया, जो दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। तुर्की के सफ़ीर मिस्टर ओजान सेहोन ने अपने मुख्तसर खिताब में वियना में तुर्क कम्यूनिटी के हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा, जमहूरिया तुर्की मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुझे बड़ी इत्मीनान है कि तुर्की के सफ़ीर ने और बाकी लोगों ने जिस तरह अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ हमेशा की तरह साथ खड़े होंगे, पूरी मदद करेंगे, तावन करेंगे। Önce sizlere teşekkür ediyorum. Bugün burada bu toplantıya katıldığınız için medya temsilcilerinden biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya'da diplomatları olarak tüm Rusya'da yaşamakta olan साबिक सफ़ीर ब्रिगेटा ब्लाहा ने ऑस्ट्रिया पाकिस्तान सोसाइटी की सरगर्मियों के बारे में बताया, जबकि मिस्टर एंड्रियास जिंगल ने शुरका को कैरिटास की जानिब से पाकिस्तान में फराहम की जाने वाली इमदाद के बारे में आगाह किया। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थायी एसोसिएशन ने फंड रेजिंग का एहतमाम किया, जिसमें फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सेंटर TBFA समेत मुतअद्दिद तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एहतियात जमा किए। मुसीबत ज़दा पाकिस्तानियों की मदद के लिए इस फंड रेजिंग मुहिम में पाकिस्तानी सफारत खाने ने अहम किरदार अदा किया है। थाईलैंड की वजारत खारजा ने इस हवाले से तकरीब का एहतमाम करके इमदादी रकम का चेक पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। इमरान यूसुफ रिपोर्ट करेंगे। सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानी हम वतनों की मदद के लिए थाईलैंड में मुकीम मुसलमान भी पेश। ओवरसीज पाकिस्तानी स्थायी एसोसिएशन की फंड रेजिंग मुहिम में फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सेंटर TEFA समेत मुतअद्दिद तंजीमों ने भरपूर शिरकत की और सैलाब मुतासरीन के लिए अतियात जमा किए। बैंकॉक में थाईलैंड की वजारत खारजा ने अपने दफ्तर में बावकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के ऑफिशल्स, डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन यासिर हुसैन, वीजा काउंसलर तनवीर अहमद, कमर्शियल काउंसलर फारूक शरीफ, फर्स्ट सेक्रेटरी नाइला इसरार और OPA के सदर अब्दुल गफ्फार वारसी, सीनियर नायब सदर मलिक शाहीन यूसुफ अवान, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अजहर विर्क और नायब सदर मुमताज अली खान ने शिरकत की, जबकि मुतअद्दिद तंजीमों के नुमाइंदे और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के अफराद भी शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी वजीर खारजा और DHM यासिर हुसैन ने कहा कि थाईलैंड और पाकिस्तान के ताल्लुकात बरादराना हैं, जिसमें गुजरते वक्त के साथ बेहतरी और मजबूती आई है और दोनों मुमालिक एक दूसरे के दुख सुख के बराबर के शरीक हैं और हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब के दौरान वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स विजयवाद इसरा भाखड्डी ने पाकिस्तानी सफारत खाने के DHM इसरार हुसैन को इमदादी रकम का चेक पेश किया। इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तकरीब में ओवरसीज पाकिस्तानी स्थायी एसोसिएशन के फाल और मौसर किरदार को खूब सराहा और कहा कि OPA की मजबूत और सेहतमंदाना कारकर्दगी से दोनों मुमालिक के बेहतर ताल्लुकात पर दूर रस असरात मुरतब होंगे। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक, थाईलैंड। अमीर जमीयत अहले हदीस सेंटर प्रोफेसर साजिद मीर का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। मज़ीद तफसीलात उमर अली की रिपोर्ट में।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मकतबा दारुल इस्लाम के डायरेक्टर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में शरीक मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान और दीगर कम्यूनिटी मेंबरान से इजहार ख्याल करते हुए सेंटर प्रोफेसर साजिद मीर का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने हमवतनों के लिए दिल खोल कर मदद को यकीनी बनाना चाहिए और जिस तरह खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है, उस पर पूरी कौम सऊदी क़यादत और अवाम की शुक्रगुजार है। दीनी सियासी जमातें भी काम कर रही हैं, मरकज़ी भी तहलीस भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है काम उसने किया और कर रही है और इंशाअल्लाह मज़ीद करेगी। और मैं बड़ी खुशी और तशक्कुर के साथ इस बात का भी इज़हार और ज़िक्र करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब और उसकी हुकूमत ने हमेशा की तरह माजी की रिवायात को कायम रखते हुए और आगे बढ़ाते हुए इस मुसीबत की इस घड़ी में भी, जैसे कि वो पहले करते रहे, मुसीबत की इस घड़ी में भी उन्होंने हमारी इमदाद का फैसला किया और भरपूर अंदाज में मुहिम चला रहे हैं टीवी पर और अदरवाइज़ कि जितना ज़्यादा डोनेशंस वगैरह इकट्ठी हो सकती हैं वो इकट्ठी करके पाकिस्तान भिजवाई जाएँ। मकतबा दारुस्सलाम के डायरेक्टर मौलाना अब्दुल मलिक मुजाहिद का कहना था कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी मुतहर्रिक है और सऊदी अरब की जानिब से मखसूस अकाउंट में अतियात जमा करवा रही है और हम सऊदी क़यादत के मशकूर हैं जो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इक़दामात कर रही है। अरब की जितने भी हमारी कम्युनिटी है जब से सैलाब आया है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुतहर्रिक है और हर जमात ने, हर तंजीम ने पाकिस्तान के अंदर भरपूर पैसे भी भेजे हैं, वहाँ के अवाम की मदद की है। जहाँ तक सऊदी हुकूमत का तल्लक है, हम खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नहायत शुक्रगुजार हैं, सऊदी अवाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हस्बे साबक हमेशा जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने पाकिस्तान की मदद की है। इस वक्त भी मदद कर रहे हैं, हम उसके लिए दिली तौर पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए मजहबी उमूर प्रोफेसर मौलाना अब्दुल करीम समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के सदर और साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने सैलाब ज़दगान की भरपूर इमदाद करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है और लीगी अरकान को कहा है कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए वो भी दिल खोल कर माली इमदाद फराहम करें। रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून के अरकान से वीडियो लिंक पर इजहार ख्याल करते हुए साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान सैलाब की तबाहकारियों की वजह से नाजुक दौर से गुजर रहा है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सऊदी अरब में मुकीम लीगी अरकान अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद को यकीनी बनाएं और हम खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के शुक्रगुजार हैं जो भरपूर अंदाज में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद और सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर का कहना था कि लीगी अरकान के अलावा सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी अपने हम वतनों के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब की जानिब से मखसूस करदा बैंक अकाउंट में फंड्स जमा करवा रहे हैं। सैलाब में फंसे हुए हैं और उसमें बहुत सख्त मुसीबत में है। हम सबका फर्ज है कि हम अपनी अपनी पूरी कोशिश के साथ उनकी इमदाद करें और अपनी अपनी कैपेसिटी के साथ अल्लाह ताला कबूल करें। तो मेरी आप सब साथियों से गुजारिश होगी कि आप जहाँ हैं वहाँ के खादिम हरमैन शरीफैन ने भी अपील की है, आपका भी एक फर्ज है, आप एक पूरी बॉडी है और आप मेहरबानी करके पूरी कोशिश करें कि अपने बहन भाइयों के लिए जो कुछ भी वहाँ से हो सकता है वो करें। वीडियो लिंक के जरिए मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के जनरल सेक्रेटरी रुकन कौमी असम्बली चौधरी नूरुल हसन तनवीर और PMLN इंटरनेशनल अफेयर्स के कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक ने भी इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब।